Hello dear students, in this video we will discuss about the applications of dimension formula. But the first application is to convert a physical quantity from one system to other. Generally पहले हम यही डिटेल में डिस्कस करेंगे. Second application is to check the dimensional correctness of a given physical relation. And third is to derive relationship between different physical quantities. So first of all, we'll discuss about the conversion between the system of units. It is about the conversion of physical quantity between system of units. But any quantity, physical quantity, say Q, that we can write as N into U. What is N? N is here numeric value. And what is U over here? That is a unit. Okay. And similarly, I can say Q is equal to N1 U1 in system 1. And that is equal to N2 U2 in another system, that is 2. Okay. Example sake, density of water that is equal to 1000 kg per meter cube. In which system? In SI system. And if I'll talk about density of water, that can be written as 1 gram per centimeter cube. And this system is CGS system. This is in CGS system. And if I'll ask you which one is greater out of these two, which one is greater? So 99% students, they will say that 1000 kg per meter cube is greater than 1 gram per centimeter cube. But my dear students, this idea will be wrong, because 1000 kg per meter cube is equal to 1 gram per centimeter cube. It's just like here I have done the conversion of density of water from SI to CGS. And how to perform this, how to get this value? Here is the example number 1. Convert 1 Newton into dyne. Newton is SI system and dyne is CGS system. Okay. So solution for this is as you know, Q is equal to N1 U1 is equal to N2 U2. Now this 1 is what? It is a given. That is the value of N1. In SI system, U1 I can write as M1 raised to power A, L1 raised to power B, and T1 raised to power C. In this N2 I want to know, which is in CGS, and corresponding to this U2 is equal to M2 raised to power A, L2 raised to power B, and T2 raised to power C.
So if I'll write it again, from this I can easily write n1, in place of u1 I will write m1 raised to power a, l1 raised to power b, t1 raised to power c. And to the other side, that is equal to n2, in place of u2 I will write m2 raised to power a, l2 raised to power b, and t2 raised to power c. So from this I can easily find this n2. n2 is equal to n1 m1 upon m2 raised to power a, then t1 upon t2 raised to power b, L1 by L2 raised to power b, and then T1 by T2 raised to power c. So what do you want to convert here? Force whose dimension formula is m1 L1 T minus 2. So simply by comparing, A is 1 over here, then B is also 1 over here, and C is also that you can compare with the power of T. So by comparing you will get C is equal to minus 2, right? So beta N2 which you want to get, N1 is given here. N1 is this 1, because 1 Newton you want to convert into how many dynes, that you want to know. ये 1 magnitude जो है that will be the value of N1. तो बेटा यहाँ पे 1 आ जाएगा. And in system 1 M1 SI system में 1 kg आएगा, L1 SI system में 1 मीटर आएगा, T1 SI system में 1 सेकेंड आएगा. This is about SI system. And in CGS system M2 जो आएगा that is will be equal to 1 gram, L2 1 centimeter, and T2 1 second. So same thing you can substitute here. In place of 1 M1 you can write 1 kg upon 1 gram raised to power A. The value of A is 1. Here is the value of A. Then you can write for L1. L1 is in meter, SI system चला हुआ हमारा, और L2 is in centimeter. Raised to power बेटा B आएगा यहाँ पे, और B का वैल्यू है 1. Now come to this T1, that is 1 second, and here also 1 second raised to power minus 2. Now value of kg you can write in gram, ताकि ये दोनों कट हो जाएं. एक ही सिस्टम में चलाना हमने. मीटर को बेटा 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, नीचे भी सेंटीमीटर आ जाएगा, और सेकंड तो ऑलरेडी कट हो रहा है. सो this minus 2 I will bring it down, so nothing will happen, it will remain same. ओवरऑल अगर आप देखो तो ये कट कर रहा है, सेंटीमीटर भी कट कर रहा है. तो N2 का वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, 1000
इंटू 100, तो बेटा ये आ जाएगा 10⁵ सो सिंपली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के इक्वल आ रहा है, जहाँ n1 जो है वो 1 है और n2 जो हमने अभी पता किया दैट वाज 10⁵, तो ये हमने पता करना था। यस बेटा, विद दिस एग्जांपल वी कैन कन्वर्ट 1 न्यूटन SI यूनिट इनटू डाइन इन CGS यूनिट। सो सॉल्यूशन में बेटा डिस्कस करते हैं कि कैसे जो है कन्वर्शन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वांटिटी को Q लिखा जाता है और दैट इज इक्वल टू N1 U1 एंड दैट इज इक्वल टू N2 U2। कोई भी क्वांटिटी है वो चेंज थोड़ी नहीं होगी। वन सिस्टम ऑफ यूनिट, ये मेरा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये मान लो SI सिस्टम है, ठीक है, और ये मेरा CGS सिस्टम है जिसमें मैंने कन्वर्शन करना है उसका, राइट। सो दिस इज द सिस्टम 1 एंड दिस इज द सिस्टम 2। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन N1 जो है मेरा 1 है, दिस इज द वैल्यू, ये 1 दिया हुआ है यहाँ पे, और N2 आई वांट टू गेट, N2 मुझे पता करना है। बेटा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है M1 L1 T-2। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मेरा वैल्यू ऑफ A है, L⁻1 आ रहा है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ B, और C मेरा -2 आ रहा है, T⁻2 दैट इज द वैल्यू ऑफ C। और U1 को लिखना हो तो मैं फर्स्ट सिस्टम में लिखूंगा M1⁻A, L1⁻B and T1⁻C। Similarly, I can write U2 also. Second system में M2⁻A, L2⁻B and T2⁻C। Now N2 U2 can be written as N1 U1। मुझे इंटरेस्ट है इसमें N2 में, तो N2 को कैसे पता करेंगे? वो आ जाएगा N1 इंटू U1 अपॉन U2, ठीक है। नाउ N1 एज इट इज, बेटा U1 को लिख सकते हैं हम M1 अपॉन M2 ⁻A, then L1 upon L2 ⁻B, then T1 upon T2 ⁻C। अगर ऐसे सिस्टम की बात करें जो कि मेरा सिस्टम 1 है, वहाँ पे M1 क्या आएगा 1 kg, L1 is 1 meter and T1 is 1 second, okay। and in CGS सिस्टम बात करें जो कि सिस्टम 2 है, उसमें M2 जो आएगा दैट इज 1 ग्राम, L2 जो आएगा वो 1 सेंटीमीटर, और T2 जो आएगा वो 1 सेकेंड आएगा, राइट। सो अब हमारी बारी है इसकी सब्स्टिट्यूशन की। N1 मैंने बताया आपको 1 न्यूटन है, तो 1 आ जाएगा N1 का वैल्यू। M1 की जगह 1 kg सब्स्टिट्यूट कर दो, M2 की जगह आ जाएगा 1 ग्राम, और रेज़ टू पावर A आएगा, लेकिन A का वैल्यू जो था दैट वाज 1। अगर यहाँ बात करें L1 की तो वो 1 मीटर है, L2 इज़ 1 सेंटीमीटर,
और b की पावर जो है, b का वैल्यू जो है दैट इज आल्सो 1। बेटा t1 जो आएगा यहाँ पे 1 सेकेंड है, t2 इज आल्सो 1 सेकेंड, और रेज टू पावर क्या आएगा यहाँ पे -2। ये हम पहले लिख चुके हैं, इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यू कैन सी दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ a, here it is b and here it is c। नाउ इनको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट सी दैट। बेटा केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, नीचे भी ग्राम आएगा, ऊपर रेज टू पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, नीचे भी सेंटीमीटर आएगा, ऊपर रेज टू पावर 1। सेकंड कट ही जाएगा, तो यहाँ पे 1 रेज टू पावर -2 आ रहा है। ओके, नाउ यू कैन इजीली सी दैट ये भी ग्राम ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर कटेगा, एंड अल्टीमेटली मेरे पास जो है n2 वो आएगा 1 इंटू 1000, और यहाँ पे आगे 100 है। बेटा इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये 1 रेज़ टू पावर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, बट हार्डली मैटर्स, ये भी 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है, सो n2 मेरे पास क्या आने वाला है, यहाँ 3 zeros हैं, यहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 5। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n2। नाउ q जो था दैट वाज n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ओके, सो अभी हमें n1 का वैल्यू मिल चुका है। n2 इज इक्वल टू 10 टू पावर 5। सो सिंपली आई कैन से 1 न्यूटन का अभी हमें कन्वर्शन मिल गया डाइन में, जहाँ पे 10 टू पावर 5 डाइन आ रहा है हमारा आंसर। So in this way we can easily convert 1 Newton force from SI system to CGS system, that is 10 raised to power 5 dyne. Second application is to check the dimensional correctness of a given physical relation. So इसमें principle of homogeneity आता है। इसका मतलब है if in a given relation the terms on both the sides have the same dimensions, then the relation is dimensionally correct, and this is known as the principle of homogeneity of dimensions. So what is the meaning of this? Try to understand. जैसे मेरे पास एग्जाम्पल से एक s is equal to ut plus half 80 स्क्वायर रिलेशन है, तो इसको डायमेंशनली प्रूव करने के लिए कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन लिखना पड़ेगा, जो कि डिस्टेंस का है, वो L आ जाएगा, एंड टू द राइट साइड फर्स्ट टर्म बेटा ut है, तो u जो है वेलोसिटी है उसका आ जाएगा LT-1, साथ में इसके t टाइम के लिए, तो इसका t रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा। नाउ दिस इज अ कांस्टेंट जो कि डायमेंशनलेस है, इसको इग्नोर कर दो। कम टू द नेक्स्ट एक्सेलेरेशन जो कि L1t-2 होता है, एंड साथ में इसके t स्क्वायर हैं जिसका आ जाएगा t रेज़ टू पावर 2। ओके, नाउ इफ यू ऑब्जर्व लेफ्ट हैंड साइड में तो ओनली L दिख रहा है, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो रहा है, सो फर्स्ट टर्म के लिए भी L आएगा और सेकंड टर्म के लिए भी L आना चाहिए, बिकॉज सेम डायमेंशन की क्वांटिटी सेम डायमेंशंस में ऐड होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, अगर इनको ऐड करें तो हमारे पास फिर से लेंथ आएगा। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का अगर डायमेंशन चेक करें तो दैट इज आल्सो L, और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला देखें तो वो भी हमारे पास L आ रहा है। व्हाट इट मीन्स, डायमेंशनली इट इज करेक्ट। एक और कर सकते हैं, एज यू नो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर
that is equal to height of the liquid into density of the liquid into gravity। तो बेटा इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। प्रेशर के लिए हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml -1 t -2, ओके। एंड टू द राइट साइड फर्स्ट टर्म आ रही है हाइट की, जो कि एक डिस्टेंस है, उसके लिए L आ जाएगा मेरे पास। देन आई हैव डेंसिटी, बेटा डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसके लिए है ml -3। आफ्टर दैट मेरे पास G है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये एक्सेलरेशन के लिए हमारा डायमेंशन फॉर्मूला यूज होगा इसके लिए। नाउ फिर से बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो वहाँ मेरे पास m1 L -1 t -2 आ रहा है। एंड इफ यू कंपेयर द राइट साइड, बेटा L यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे फिर से 1 है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास मास तो एग्जैक्टली 1 आ रहा है, जो कि यहाँ पे है। लेंथ के लिए मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 1 -3 देन अगेन +1 एंड टू द अदर साइड आई हैव t -2 फॉर टाइम। ओवरऑल बात करें डायमेंशन फॉर्मूले की, तो लेफ्ट हैंड साइड m1 L -1 t -2 आ रहा है और राइट हैंड साइड भी m1 तो आ रहा है। लेंथ को चेक करो एक बार, बेटा 1 + 1 2 हो गया, 2 -3 कितना आएगा, फिर से -1 ही तो आएगा। एंड t ऑलरेडी हमारे पास -2 है, सो दिस इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। जब आपका डायमेंशन फॉर्मूला दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम आ जाए, तो इट मीन्स डायमेंशनली आपका इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। सो कोई भी डाउट आता है इन कमेंट सेक्शन, यू कैन मेंशन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।